So today I will start the new chapter, admission of a partner. So what is the treatment of admission of a partner and what is admission of a partner? I will tell you one by one. So chapter number 3, new chapter, admission of a partner. So sometimes a new partner is needed into the business due to the following reasons. Sometimes a new partners is needed into the business due to the following terms and conditions, due to the following reasons. First condition is when more capital needed for the expansion of the business. When the more capital is needed for the expansion of the business, it means जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो, तो एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर. सेकेंड थिंग, when a competent and experienced person is needed for the efficient running of the business. अगर दो पार्टनर चाह रहे हैं कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन आए जो बिजनेस को बढ़ाए, तो उसके लिए हम नए पार्टनर का एडमिशन ले सकते हैं. थर्ड थिंग, टू इंक्रीज द गुडविल and the reputation of the business by taking a reputed and renowned person into the partnership. ठीक है. Next, to encourage a capable employee by taking him into the partnership. तो जब एक नया पार्टनर आता है तो उसको एडमिशन क्यों दिया जाता है? जब कैपिटल की नीड हो या फिर एक कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन अगर कंपनी को चाहिए कंपनी को रन कराने के लिए, या फिर टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ हिज बिजनेस बाय टेकिंग अ रेपुटेटेड एंड रिनोन्ड पर्सन. एंड नेक्स्ट थिंग, a new partnership deed is prepared at the time of admission. At the time of admission, the new partnership deed is prepared. जब एक नया पार्टनर आता है तो न्यू एग्रीमेंट बनता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. ठीक है. As the old partnership deed comes to an end, यानी वो पुरानी जो डीड बनी थी उसको खत्म करने के बाद एक न्यू डीड बनेगी, जो न्यू एग्रीमेंट बनेगा. सपोज जो रेशियो था, सपोज जो पहले ए एंड बी, दिस इज ओल्ड पार्टनर्स, सो इन दोनों का जो रेशियो था 2:1 था. ठीक है. तो ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो 2/3 1/3. When the new partners join to the firm, so अब नया पार्टनर आ गया सी. सो अब नया रेशियो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये माना गया कि अब जो न्यू रेशियो जो होगा वो इक्वली होगा. सो पहले जब ए और बी पार्टनर थे तो रेशियो था 2:1. नाउ द पार्टनर्स न्यू पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनरशिप डीड. So three partners joined, one new partners joined to the firm A, B, C. So the new ratio is 1/3, 1/3, 1/3. Clear? So ये old ratio था, ये new ratio था. तो इसका एग्रीमेंट खत्म करने के बाद अब न्यू रेशियो में जो डीड बनेगी वो ये बनेगी इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. Now next thing, a new partnership deed is prepared at the time of admission of a new partner as the old partnership deed comes to an end. According to section 31 first of the Indian Partnership Act, a new partners can be admitted only with the consent of the existing partners. इसका मतलब है 31 first. According to 31 first, section first, subsection 1. Section first, section 31, subsection 1. So of the Indian Partnership Act, a new partners can be admitted only with the consent of old partners. Clear? Now the rights of the new partner. What is the rights of the partner? A new partner gets the following two rights. First one, right to share future profits, right to share in the assets of the firm. जब वो नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहला वो फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में बात करेगा कि न्यू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमको रेशियो क्या मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और जब फर्म ज्वाइन करेगा तो उसका एसेट्स में क्या हिस्सा होगा. ठीक है. नाउ एट द टाइम
he becomes liable for any liability incurred by the firm after his admission. अगर वो एसेट्स में उसका शेयर है तो उसका राइट ये भी है कि फर्म की लाइबिलिटी को भी वो पेड ऑफ करे. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. जब एक नया पार्टनर आता है तो फर्म में क्या क्या लेकर के आता है? गुडविल लेकर के आता है. और क्या क्या लेकर के आएगा? गुडविल एंड कैपिटल. वो गुडविल जो रहेगा या तो वो कैश देगा या तो क्रेडिट गुडविल. या 3 टाइप्स ऑफ गुडविल. फर्स्ट वन गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल. टाइप्स ऑफ goodwill. 3 types of goodwill. 3 types of goodwill. First one, cash goodwill. Second one, credit goodwill. And third one, private goodwill. ठीक. So types of goodwill. First I will explain the types of goodwill. Goodwill के types कितने हैं? 3 types of goodwill. The first one is cash goodwill, second is credit goodwill, and third is private goodwill. What is cash goodwill? When the new partners come and join to the firm, he brings capital or goodwill in cash. So this is cash goodwill, cash treatment. What is the cash goodwill treatment? When the new partners join to the firm and he brings goodwill in cash, so what is the treatment of goodwill in cash? In cash treatment. In cash treatment. This is the very important chapter. So in cash goodwill, बैंक अकाउंट डेबिट, जब वो पैसा लाएगा सो आने वाले को डेबिट, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट, एंड टू गिवर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू प्रीमियम फॉर गुडविल being new partner bring goodwill amount. So first of all I will discuss the cash goodwill. What is the treatment of cash goodwill? 3 types of goodwill. The first one is cash goodwill, second is credit goodwill, and third is private goodwill. कैश का मीन्स है कि वो पार्टनर आता है तो कैश में पैसा दे करके गुडविल, कैश में गुडविल लेकर के आएगा. सेकंड थिंग क्रेडिट गुडविल, यानी वो पार्टनर तो बन गया लेकिन वो कहता है कि हम नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर हम आपको गुडविल का पैसा देंगे, आज ना कल उसको पैसा दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट गुडविल. प्राइवेट गुडविल, अंडर द टेबल, नो ट्रीटमेंट, नो एंट्री. प्राइवेट गुडविल अंडर द टेबल, यानी वो धीरे से पैसा दे देगा, बुक्स में शो ऑफ नहीं होगा, और जिसका बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, जिसको हम बोलेंगे नो एंट्री. ठीक है, पहली चीज तो कैश गुडविल का ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट ऑफ कैश गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. जब वो पैसा ला रहा है और वो पैसा जब लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट, आने वाले को डेबिट, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो पैसा किस चीज का था? प्रीमियम फॉर गुडविल. तो फर्म की लायबिलिटी बनती है कि अब ये पैसा किसको दे दे? ओल्ड पार्टनर्स को. ठीक है, सपोज मिस्टर ए बी सी वर पार्टनर्स, मिस्टर ए बी वर पार्टनर्स, सी एज अ न्यू पार्टनर. क्लियर? सी एज अ न्यू पार्टनर, ही जॉइंस टू द फर्म, और वो क्या लेकर के आ रहा है? गुडविल लेकर के आ रहा है. तो जब गुडविल लेके आएगा तो एंट्री बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. अब ये गुडविल का पैसा किसका राइट है? जब वो ले आया गुडविल तो ये पैसा किसको देगा? ए और बी का राइट है कि उस पैसे को ए और बी को दे दिया जाए.
जब ए और बी को निकालेगा तो जब पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए's कैपिटल एंड टू बी's कैपिटल। सो इसका मतलब है कि ये पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब है कि ये पैसा लाया है, वो पैसा कहां से आया, प्रीमियम फॉर गुडविल से। इस पैसे पर राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। सो इस पैसे को निकालो, हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का, या टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक। सो बीइंग goodwill amount transferred to old partners, being goodwill amount transferred to old partners। अभी इस पैसे को हमने गुडविल अकाउंट इस पैसे को हमने कलेक्ट किया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो गुडविल ला रहा था तो बीइंग न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल अमाउंट। ठीक है, या बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, डरेशन डाल देना, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। अब इस पैसे को निकाला, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इनके खाते में इनकी इनकम है, तो इनको कंपनी पैसा देगी, तो किसके अकाउंट में जा रहा है वो पैसा, ए और बी के अकाउंट में। ठीक है, ए और बी की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब ये पैसा इन्होंने विड्रॉ नहीं किया, जब ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री बनेगी, विड्रॉ एंट्री, गुडविल अमाउंट गुडविल विड्रॉ एंट्री। गुडविल विड्रॉ एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को पैसा मिल गया, आने वाले को डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू फर्म के पास से पैसा चला जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय the old partners। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल रिपीट अगेन, टाइप्स ऑफ गुडविल, 3 टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट वन कैश गुडविल, क्रेडिट गुडविल, प्राइवेट गुडविल। प्राइवेट गुडविल का लेखा नहीं होता है, प्राइवेट गुडविल नो एंट्री, यानी अंडर द टेबल पैसा मिल गया। कैश गुडविल में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को निकालो, पहले क्रेडिट था, खत्म करोगे तो डेबिट टू ए टू बी, यानी इस पर राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, बीइंग गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब गुडविल जब विड्रॉ करेगा, ये तो एंट्री है पैसा लाने की, और ये है ट्रांसफर एंट्री, ठीक, ट्रांसफर एंट्री। नेक्स्ट एंट्री विड्रॉ एंट्री। What is the treatment of withdraw entry? A's capital account debit, यानी रिसीवर को डेबिट, and A's capital account debit, B's capital account debit. It means old partners capital account debit and to bank account। यानी जब वो मिलेगा, जब उनको कंपनी दे देगी तो ये लोग रिसीव करेंगे, रिसीवर ए एंड बी डेबिट, रिसीवर को ऑलवेज डेबिट, एंड टू फर्म के पास से क्या चला गया, पैसा। जब पैसा आ रहा था तो बैंक डेबिट, जब पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट। तो बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्रेडिट गुडविल। व्हाट इज क्रेडिट गुडविल? ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द 3 एंट्रीज in cash treatment, cash goodwill. Cash treatment, it means cash goodwill. The treatment of cash goodwill, first one bank account debit, premium for goodwill debit to A to B. Withdraw treatment, A debit, B debit to bank account. First you have to write this thing fast.
So next treatment. So the second discussion, credit goodwill. Credit goodwill entry. Credit goodwill. What is the credit goodwill? In future, न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर आता है कैश पैसा लेकर के आता है, अगर वो पैसा नहीं लेकर के आया तो इन फ्यूचर उसको पैसा देना है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, टू रिमेनिंग टू ओल्ड पार्टनर्स being credit entry, credit goodwill entry pass. ठीक है, अगर वो पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर के आ रहा है, क्रेडिट गुडविल के बारे में कहा है, तो आप एंट्री बनाओगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. सो क्रेडिट ट्रीटमेंट ये है गुडविल का. ठीक है, एंड थर्ड ट्रीटमेंट प्राइवेट गुडविल. प्राइवेट गुडविल का मतलब होता है नो एंट्री इन केस ऑफ प्राइवेट गुडविल. प्राइवेट गुडविल अंडर द टेबल, अगर कोई पैसा बुक्स में, अगर ए बी पार्टनर हैं, ए बी वर पार्टनर्स, न्यू पार्टनर सी, और इन तीनों ने डिसाइड किया कि गुडविल के पैसे को बुक्स में नहीं शो करना है, तो उस केस में क्या होगा? प्राइवेट गुडविल. बुक्स में हम शो नहीं करेंगे, इसलिए हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, व्हेन अ न्यू प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, और जब वो कैपिटल लाएगा तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? अभी तो गुडविल का ट्रीटमेंट था. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई विल डिस्कस. When the new partners has come and joined to the firm, so capital का treatment क्या होगा? Bank account debit, bank account treatment of capital, bank account debit to what? New partners capital account, bank account debit to new partners capital account. Being capital amount bring by the new partner. ठीक है, so you have to write fast. Treatment of capital. Bank account debit to new partners capital account, being capital amount bring by the new partner. Clear? Now next thing I will discuss calculation of new profit sharing ratio. So what is calculation of new profit sharing ratio? When a new partner is admitted, he acquires his share of profit of the firm, the old partners. This reduces the old partner share of profit, hence the calculation of new profit sharing ratio, because necessary when the following terms and conditions, following types of problems may arise for the calculation of new profit sharing ratio at the time of admission of a new partner. Clear? जब एक नया पार्टनर आएगा तो उसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे हम क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट पॉइंट, what difficulties are arising when only the new ratio of the partner is given in the question? Then in the absence of any other agreement, it is presumed that the old partners will continue share the remaining profits in the same ratio which they were sharing before the admission of a new partner. So first of all I will discuss new profit sharing ratio. What is new profit sharing ratio? Suppose A and B were partners.
The ratio is 2/5 and 3/5. Clear? पहले रेशियो था 2/5 and 3/5. Clear? तो अब जो रेशियो होगा, जब एक नया पार्टनर आ रहा है मिस्टर सी 1/4 के लिए आ रहा है, तो हम तीनों के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? How to calculate? This is the very important thing. How to calculate the new profit sharing ratio? So I will discuss one more thing, and one more important thing I will discuss: goodwill treatment. When the new partners join to the firm and he brings what? Capital or a goodwill? So जब गुडविल लाएगा तो हमने बताया बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. इट मींस ए और बी ओल्ड पार्टनर सपोज, एंड विड्रॉ एंट्री व्हाट? विड्रॉ एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो गुडविल अमाउंट when the new partners join to the firm and he bring goodwill amount, so goodwill amount distributed in sacrificing ratio. So I will discuss, so first of all I will discuss regarding new profit sharing ratio. So I will start the question, new profit sharing ratio. Clear? So first question I will start today, new profit sharing ratio. So the first question is, first A practical question. So I will discuss today new profit sharing ratio practical question. It's a very important thing. How to calculate new profit sharing ratio? I will tell you. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. A और B पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3, मीन्स 5/8 and 3/8. According to the question, C is admitted the partnership for 1/4 share of future profits. यानी C कितने के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर. C का शेयर जो है 1/4. तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? How to calculate the new profit sharing ratio? तो first of all इस कंडीशन में जब ये कह दे कि A and B old partners, so A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. It means 5/8 and 3/8. And C brings 1/4 share future profits. Calculate the new profit sharing ratio. So how to calculate the new profit sharing ratio? First of all, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब एक नया पार्टनर सी आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जब कहेगा कि एक दो पार्टनर है जिनका रेशियो है सी इतने के लिए आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर. हाउ टू कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर? टोटल शेयर 1, वो कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए. सो 1/4 के लिए आ रहा है तो 3/4. ठीक है. सो आपके पास रिमेनिंग शेयर यानी टोटल शेयर आपका कितना है? सी ला रहा है 1/4. तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन होगा तो टोटल तीनों का प्रॉफिट हम 1 मानेंगे. जब तीनों का प्रॉफिट हम 1 मानेंगे तो उस केस में क्या होगा? 1 - 1/4. तो ये किसका प्रॉफिट होगा? ए और बी का. आपको सी का प्रॉफिट पता है, सी का प्रॉफिट है 1/4 और जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो जिसको देना है ए एंड बी, उसका रेशियो है 3/4. क्लियर? सो 3/4. सो इस कंडीशन में ए का रेशियो क्या होगा? ए इज न्यू शेयर. A share. How to calculate A share? 5/8 of 3/4. B share 3/8 of 3/4. यानी 5/8 of 3/4, 3/8 of 3/4.
So and the C share 1/4. So कितना हो जाएगा 15/32, 3 3 जा 9, 32. Clear? Now the next thing 1/4. C का शेयर कितना है 1/4. सो तीनों का इक्वल करने के लिए ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 32 32 आ जाए. सो 8 से मल्टीप्लाई, सो 8/32. सो यही हमारा क्या हो जाएगा द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is equal to 15:9:8. ये आपका आंसर. Again I will repeat this question. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. It means 5/8 and 3/8. इस कंडीशन में C आ रहा है 1/4 के लिए. बस ओल्ड रेशियो दी गिवन है क्वेश्चन में और C जितने के लिए आ रहा है उतना वो बस कह रहा. और रिमेनिंग ऐसे केस में हम क्या करेंगे रिमेनिंग शेयर निकालना. सो टोटल शेयर इट विल बी 1 minus 1/4 तो 3/4. सो इस कंडीशन में A का जो न्यू शेयर होगा A शेयर 5/8 of 3/4. 5/8 of 3/4 तो टोटल शेयर A का नया शेयर कितना हो गया 15/32. B's न्यू शेयर 3/8 of 3/4. सो टोटल शेयर कितना हो गया 9/32. अब C का शेयर 1/4 दिया था तो चूंकि 32 32 दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो उस कंडीशन में हमने मल्टीप्लाई किया 8 से तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:9:8.